ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ सोसाइटी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ इंतज़ार कर रहे अपने पैसे का। आप कितना पैसे लगे? 30 करोड़। मेरा भी 35-40 लाख रुपया है और बहुत सारे एडवाइज़रों का, इन्वेस्टरों का पैसा है जिसको हम 4 साल से तरस रहे हैं इस पैसे के लेने के लिए। ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ छीन लिया, ਸਾਡਾ पैसा भी छीन लिया। मेरा खुद का पर्सनल 8 लाख है। नया घर बनाया था, बेटी की शादी थी, पढ़ाई के लिए आगे इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी की थी, अपने आप को मार के। अभी 2 बेटियां ही हैं, बेटा है नहीं, बुढ़ापा आराम से कटेगा। ये थोड़ा ना पता था कि जो है वो भी खत्म हो जाएगा पैसा। बैंक से निकला के ना आदर्श में पैसा लगाया था, बेटी की शादी खातिर है, पैसे मुझे नहीं मिल रहे अभी। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰੈਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇटिव सोसाइटी के निवेशकों को न्याय दो, इस तरीके के बैनर्स लेके आए ने, छोटे छोटे प्लेकार्ड्स लेके आए ने। सहकार मंत्री अमित शाह हमारी बात सुने, हम हक हमारा मांगते हैं, इस तरीके के बैनर्स ਜਿਹੜੇ लेके आए ने। आदर्श मैंबर्स एसोसीएशन ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਲੇਕਾਰਡਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਨਰਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? परमानंद। हाँ जी, परमानंद जी, कितने पैसे लगे हैं? 30 करोड़। 30 करोड़। आप टीम के मैं एडवाइज़र था इसमें और बहुत बढ़िया टीम बनाई थी इसमें। और यहाँ पे सोसाइटी 1999 में शुरू हुई थी सिरोही राजस्थान से। अच्छा। और पैन इंडिया में 809 ब्रांच थी इसकी। और इसने लगभग 4 लाख लोगों को रोज़गार दिया, 5000 एम्प्लॉय थे, 4 लाख एडवाइज़र थे, 21 लाख हमारे इन्वेस्टर थे। और इतना बढ़िया काम कर रही थी सोसाइटी और बहुत अच्छा रिटर्न टाइम पर दे रही थी। कभी किसी की मैच्योरिटी एक दिन भी लेट नहीं हुई है। हम तो बैंक में भी जाते थे, कई बार कहते भाई बैंक मैनेजर छुट्टी पे है तो कल आना, लेकिन हमारे यहाँ सेम डे मैच्योरिटी, आधे घंटे में पैसा आ जाता था अकाउंट में। इतना बढ़िया सिस्टम चल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट किसी भी संस्था जब बड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों उसको अपने उसमें चंगुल में ले लेती है। एक ही झटके में 4 लाख एडवाइज़र, 5000 एम्प्लॉय बिल्कुल बेरोज़गार हो गए और 21 लाख इन्वेस्टरों का पैसा, हज़ारों करोड़ रुपए फंसा हुआ है। परमानंद जी, हमें पहले अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हैं? आपने कब शुरू किया ये काम? आपने खुद कितना इन्वेस्ट किया? आपके ज़रिए कितने लोगों का इन्वेस्ट हुआ? थोड़ी सी डिटेल बताओ हमें। मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैंने 2014 में इस संस्था में काम शुरू किया था और मेरी लगभग 2000 लोगों की टीम थी इस सिस्टम में। हाँ, तो यहाँ पे मेरा भी 35-40 लाख रुपया है और बहुत सारे एडवाइज़रों का, इन्वेस्टरों का पैसा है जिसको हम 4 साल से तरस रहे हैं इस पैसे के लेने के लिए। अपना ही पैसा लेने के लिए हम गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं। गवर्नमेंट आज श्रीलंका को 19,000 करोड़ रुपया फंड दे देती है, लेकिन अपनी यहाँ देश की जनता जो दिन रात पिस रही है एक एक पैसे के लिए, उनकी कोई देख रेख नहीं है।
आपने 2014 से काम शुरू किया, आप काम क्या करते थे बेसिकली? मेरा पहले इंश्योरेंस का ही काम है, LIC का। ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने देखे आपने LIC का काम करते थे, आप आदर्श की तरफ क्यों गए? आपको क्या लगा कि मैंने आदर्श में इन्वेस्ट करना है? आदर्श में इसलिए था कि हमारे को यहाँ पे बैंकों से अच्छा ब्याज मिलता था और कितना फर्क था? 2-3% का फर्क था। हाँ, और टाइम पे पैसा मिल रहा था। किसी का भी मतलब आज तक हम तो मतलब शर्त लगाते थे लोगों से कि भाई देखो, जिस दिन मैच्योरिटी उसी दिन पैसा मिलेगा, कभी भी एक दिन भी लेट नहीं हुआ किसी का भी पैसा। और बहुत सारे लोग बैंकों से, पोस्ट ऑफिस से इधर शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उनको टाइम पे पैसा मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था, तो लोगों को रोज़गार भी दे रही थी। क्योंकि आज गवर्नमेंट अगर रोज़गार नहीं दे सकती तो रोज़गार छीनने का उनको हक नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आज लाखों लोग सड़कों पे आ गए और जिनका बेचारों का घर बार लोगों ने बेच के भी, कईयों ने पैसा लगाया था इसमें भी, ताकि बेटी की शादी के पे टाइम पे पैसा मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पाया। 2014 के बाद 2018 के बाद ये सिस्टम बंद हो गया। गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब आरोप लगाया कि चलती हुई एक अच्छी संस्था को बंद कर दिया। आज अमित शाह जी कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात कर रहे हैं। वो क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट की, एक इतनी बड़ी संस्था थी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में ब्रांचें थी, और उसको बंद कर दिया एक झटके में। आज वो सहकारिता मंत्री है, वो इस पर ध्यान दें कि भाई कितने लोगों का रोजगार एक झटके में निकल गया। तो सहकारिता का मतलब यही है कि लोगों को रोजगार देना, लोगों को बचत करवाना। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ABP ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ 2014 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ LIC 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਐਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ, ATM ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ, ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ। ਉਹ 2-3% ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, AC ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 10-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ। ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਪੈਸੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਸਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਲੱਸ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀ। सोसाइटी की बात करें तो 1999 से शुरू हुई थी, पर जो सहकारिता है उसको पूरे देश में जो है फैलाने के लिए एक बचत का जो है एक अच्छा साधन जो है लोगों को मिले, तो उस चीज़ के लिए जो है 2008 में जो है इसको मल्टी स्टेट का दर्जा दिया गया सोसाइटी को। और हमारे चंडीगढ़ और हिमाचल जम्मू कश्मीर में जो है 2010 से जो है यहाँ पे ब्रांचेस की शुरुआत की। उसके बाद जो है 2018 तक जो है हमारा यहाँ पे बड़े अच्छे से काम चलता रहा। रही काम की बात, तो यहाँ पे काम जो है सारा थ्रू फाइनेंशियल एडवाइज़र, जितने भी ये लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें इन्वेस्टर हैं और साथ में फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जैसे पोस्ट ऑफिस, LIC या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होते हैं। तो उनको एक छोटा सा कमीशन मिलता है और वो जो है डिपॉजिट जो है आदर्श में लेके आते थे और मेंबर्स को जो है उसका इंटरेस्ट मिलता था।
ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ स्टेट्स ਦੀ ਜ਼ੋਨ है ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ पैसा है? सचिन जी, अगर बात करें हमारे जो है इस चंडीगढ़ जोन में जो है 3 स्टेट जो है इन्वॉल्व थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब था। इसमें टोटल जो है 69 ब्रांचेस थी और 69 ब्रांचेस में अराउंड जो है 500 करोड़ का डिपॉजिट है, जो हर एक मेंबर का जो है, जिसमें एडवाइज़र भी है, एम्प्लॉय भी है और मेंबर्स भी है जिनका पैसा जो है इन्वॉल्व है। टोटल जो है मेंबर की बात करूं तो पूरे जो है जोन में 369 ब्रांचेस में अराउंड जो है 1.5 लाख से ऊपर का जो है हमारे मेंबरशिप होगा यहाँ पे, जिनका पैसा जो है लगा हुआ है। अब ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ कम्युनिकेट? जी, अभी अगर बात करें सर कि जब ये लिक्विडेशन का ऑर्डर हुआ, या फिर अगर हम बात करें जब से ये एपिसोड शुरू हुआ 2018 में, ये 13 जून को जो है न्यूज़ आई थी, वो भी एक, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं या जो हम लोगों के साथ शेयर हुई है, जो हमने देखा है कि एक षड्यंत्रकारी, जिसको आप बोल सकते हैं कि उस रूप में जो है सामने आया। जब मीडिया में आया तो नेचुरल सी बात है कि हाँ जी, पूरे देश में जो इन्वेस्टर थे हमारे डर गए, तो लोग जो है पैसा लेने वापस आए। तो वो नेचुरली सी बात है, वो कहीं पे भी अगर ऐसा होता है तो वो चाहे बैंक में भी हो, वहाँ पे भी तो अफरा तफरी होगी। तो सेम यहाँ पे हुआ, पर फिर भी जो है सोसाइटी के पास जो रिज़र्व फंड था या बाकी जो फंड था, उससे जो है सोसाइटी मैनेज करती रही और पूरे देश में जो एडवाइज़र थे उन्होंने भी जो है काफ़ी हेल्प किया और उन्होंने जो है फिर भी जो है इस न्यूज़ के बावजूद भी जो है इन्वेस्टमेंट करते रहे। पर 2019 में जब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लिक्विडेटर बैठाया, तो लिक्विडेटर जो जब बैठा तो पूरी ब्रांचेस में जो है काम होना कम होना शुरू हो गया, तो पैसे की किल्लत आनी शुरू हुई। और जब लिक्विडेशन का ऑर्डर आया तो जब इन्वेस्टिगेशन जो है होनी शुरू हुई, तो हमारी जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो जो NCLT ने जो है प्लज कर ली है, हमारे जो है अकाउंट जो है सोसाइटी के फ्रीज कर लिए। तो तब से जो है आज तक अगर हम बात करें तो हर एक मेंबर जो है वो पैसे के लिए जो है चिल्ला रहा है, और वो चिल्लाएगा। ऑब्वियसली हमारे एडवाइज़र लोग जिनके थ्रू जो है पैसा आया था, हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है चिल्ला रहा है, और हम सब लोगों का जो है जीना दूभर हो चुका है। ਸਰ ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ EMPLOYE ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਚਾਰਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਰਾਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਲੋਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ FD ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਲੇਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਔਨ ਟਾਈਮ ਦੇਣੀ, ਉਸਦੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ KYC ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 2018 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਖਾ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਪਬਲਿਕ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 18 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸਰ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਾਰੇ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ EMPLOYE ਸੀਗੇ ਸਰ, ठीक है जी। सरकार को पैसा सर, सरकार को पैसा सोसाइटी का पिया, प्रॉपर्टी सोसाइटी सरकार को पई है, तो सर देन च दिक्कत कित्थे होंदी सरकार नूं जी? सिर्फ लोगों को हराश करना उन्होंने जी, सानू उइयों खड़ा के गोली मार दो जी, यही हल है फिर। मेरा खुद का पर्सनल 8 लाख है और मेरे जो टीम है 35-40 लाख के आसपास है टोटल मेरा सारा। ये आपने जो इन्वेस्ट किया, आप और टीम का, पहले तो आप काम क्या करते हैं? आपने ये मतलब आप मैं सिलाई का काम करती हूँ, क्या बताऊँ मैं गाय पालती हूँ, दूध बेचती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। तो पढ़ी लिखी भी हूँ इतनी एक कि कुछ कर सकती हूँ। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा जो है इसमें लगाया, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आप बताएं कि आपने पैसा कैसे कमाया जो आपने इसको। बिल्कुल मैंने एक रुपया बड़ी मेहनत से कमाया। और मैं जब मार्केट में निकलती थी पैसे लेने के लिए, मेरे को हज़ारों लोग घूरते थे। मेरे पति थोड़े से ड्रिंकर है, तो ऐसी औरतों का तो हर लोग यूज़ करना चाहते हैं।
मैंने किस तरह से लोगों से पैसे लिए होंगे ये मेरी आत्मा जानती है। तो मैंने पोस्ट ऑफिस का कोड लिया, पहले पोस्ट ऑफिस का कोड लिया मैंने, मंडी में डीसी ऑफिस में जाके मैंने कितने चक्कर लगाए, किराया भाड़ा खर्चा, कोड लिया मैंने। और मैं अपनी तहसील में जहाँ पे मेन ऑफिस है इसका पोस्ट ऑफिस का, वहाँ पे गई मैं। और वहाँ पे गई तो मैं कोड लेने के लिए गई और मैं लाइनों में लगी थी। वहाँ पे मुझे इग्नोर मारा गया। पोस्ट ऑफिस में इग्नोर मारा इसलिए गया क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को ज़रूरत नहीं है एडवाइजर्स की, क्योंकि डट के कमाई हो रही है पोस्ट ऑफिस की, इसलिए इग्नोर मारा। मैं घर में आ गई निराश होके। दूसरी बार मैं फिर गई, फिर से वही बात, लाइनें लगी हुई थी और मेरे को इग्नोर मारा गया। फिर मैं ऐसे पीछे मुड़ती हूँ, देखती हूँ तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है आदर्श का कोने में। और जब आदर्श का बोर्ड लगा हुआ था तो मेरे मन में आया कि मेरे को प्लान कर रहे थे आदर्श वाले काफ़ी महीनों से प्लान कर रहे थे, जिनको कि मैं इग्नोर कर रही थी, प्राइवेट सोच के इग्नोर कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ से मैं इग्नोर हो रही हूँ पोस्ट ऑफिस से, तो मैं आदर्श में जाती हूँ। प्लान सुना तो मेरे को बहुत ही अच्छा प्लान लगा। आदर्श का प्लान इसलिए अच्छा लगा क्योंकि 1 साल का प्लान था। सबसे दी बेस्ट बात थी कि 1 साल का प्लान था। 1 साल में भी 6 महीने की प्री मैच्योरिटी थी। ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी आदर्श में, कि बंदे को अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो 6 महीने में निकाल भी सकता है। जब मैंने 3 बार फुल मैच्योरिटी दे दी लोगों को, और लोगों का विश्वास मेरे ऊपर इतना बढ़ गया था कि मैं खुद नहीं जाती थी अब लोगों के पास आरडी एफडी करवाने के लिए। लोग खुद आ रहे थे अब घर में कि हमारी करवाओ, एफडी आरडी करवाओ, आपके थ्रू हमारे पैसे बच रहे हैं। ज़्यादातर लेडीज़ आती थी जो मेरे से सूट सिलवाती है, उनके तो मैंने सबके खाते खुलवा रखे हैं। अब मैं सूट की सिलाई करके वो पैसे काट रही हूँ आरडी के। मोदी जी और सारे नेताओं को मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप लोगों की 1 महीने की सैलरी बंद होनी चाहिए, सिर्फ 1 महीने की, क्योंकि मैं इतनी सालों से तड़प रही हूँ। तब आप लोगों को सबको पता चलेगा कि पैसों की किल्लत क्या होती है। पैसा मेरा थोड़ा है, पार्टीज का ज़्यादा है, जिसमें मतलब मैं बता ही नहीं सकती कितना कितना किसका है। वो माइंड में बात आते ही टेंशन आ जाती है। अपने पेरेंट्स का है जिनसे बातचीत बंद हो गई है, मैं उस बात को रिपीट ही नहीं करना चाहती। बहुत थोड़ा सा हमें, क्योंकि आप समझाए ना कि आपने कैसे पैसा आपने कमाया है और आपने क्यों लगाया आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोई रीज़न होता है कि मेरे को इतना प्रॉफिट मिलेगा बैंक के बजाय, आपको ऐसे किसी ने अप्रोच किया, किसी ने बोला कि इसमें लगाओ, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाओ, यहाँ फ़ायदा मिलेगा आपको? नेचुरली वो तो है ही है। एक एक पैसा लेडीज़ जोड़ती हैं, कैसे जोड़ती हैं वो उसी को पता है। और नया घर बनाया था, बेटी की शादी थी, पढ़ाई के लिए आगे इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी की थी, अपने आप को मार के भी चलो आगे थोड़ा इजी हो जाएगी लाइफ। 2 बेटियां ही हैं, बेटा है नहीं, बुढ़ापा आराम से कटेगा। ये थोड़ा ना पता था कि बिल्कुल ही जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा पैसा। क्या परेशानी आ रही है अब इन्वेस्टमेंट की वजह से? आप बोल रहे हैं आपका भी है, औरों का भी आपने इन्वेस्ट किया है, फैमिली लेवल पे क्या डिस्टर्बेंस, मतलब कैसे इसने आपको मतलब इम्पैक्ट किया है? बहुत डिस्टर्बेंस है घर में। जब भी हस्बैंड बोलते हैं लड़ाई हो जाती है, क्योंकि कोई आंसर नहीं है हमारे पास। मना किया उन्होंने, फिर भी हमने किया। अभी लास्ट मोमेंट पे भी पैसा कुछ डाला जो कि मतलब टेंशन ही टेंशन है। घर में लड़ाई हो जाती है बस अगर आदर्श का नाम आता है। अभी किसी पार्टी का फ़ोन आ जाए, कुछ आ जाए, बस फिर तो उस रात को रोटी पानी सब हराम है। बहुत हालत ख़राब है इस टाइम। बेटी की शादी के लिए और जो इन्वेस्ट किया था वो शादी की है, मगर अगर हाथ में पैसा होता तो और बढ़िया से हो जाती। जो कंडीशन है। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े थे पहले, आप कुछ काम करते थे फाइनेंशियल? जी मेरे पास LIC की है, कोई शिकायत नहीं आज तक, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आदर्श का आज के बाद तो कोई काम नहीं करना, किसी भी कंपनी का हो, कुछ नहीं करना। अब तो ऐसा हो गया कि कसम खा लिया, कुछ नहीं करना। बस मोदी जी की मैं भक्त हूँ, मगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सबके पैसे, ये इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सबके पैसे वापस करवा दो तो आपको इतनी दुआएं मिलेंगी कि बस आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो जाएगी।
सर मैं पोस्ट ऑफिस का काम करती हूँ, आरडी का एफडीज का पोस्ट ऑफिस का काम करती थी। जब मुझे आदर्श का मतलब मैंने सोचा कि आदर्श के प्लान्स मैंने देखे, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुल रहा था, एनईएफटी वगैरह देखा, आरटीजीएस वगैरह देखा, तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो हमने उसके हिसाब से मैंने लोगों का पैसा इन्वेस्ट, इवन कि यहाँ तक कि मैंने पोस्ट ऑफिस का भी लोगों का सारा निकाल के सारा मैंने आदर्श में इन्वेस्ट करवा दिया। लेकिन हमें क्या पता था कि नेक्स्ट टाइम में, आने वाले टाइम में हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। इवन कि सर मेरा खुद का 35-40 लाख रुपया सर खुद का लगा हुआ है। और इवन कि सर मेरे खिलाफ लोगों ने एफआईआर लॉन्च कराई हुई है। मेरे इवन कि पोस्ट ऑफिस के सारे अकाउंट से बैंक के मेरे सारे अकाउंट से सील हैं। मैं एक पैसा भी नहीं निकाल पाती सर। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कर पाते, मैं कोई काम नहीं मेरे हस्बैंड करते सर। पूरी घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है सर। मैं मोदी जी, अमित शाह जी से यही प्रार्थना करते हैं सर, हाथ जोड़ के कि हमारा पैसा दिलाया जाए, हमारा पैसा दिलाया, ताकि हमें थोड़ी सी राहत मिले लोगों से। थोड़े सर इवन के लोग पत्थर तक सर हमारे ऊपर मारते, हमारी इज्जत तक पर हाथ डाला गया सर। इसलिए मैं लोगों से, अमित जी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ हमारा लोगों का पैसा दिलाया जाए और हमारे गरीबों की सुनी जाए, ताकि हम अपना आराम से जीवन व्यतीत कर सके। मेरा आदमी प्राइवेट काम करता फैक्ट्री में, मेरे नाम पे खाता था। मैं बैंक से निकला के ना आदर्श में पैसा लगाया था। बेटी की शादी खातिर ही पैसे मुझे नहीं मिल रहे। अभी घर में घरवाला का गुस्सा होता है, तो मेरे से बिना पूछे पैसा लगा दिए। मेरे लड़के, मेरा करीब घर का 12 लाख लगा हुआ है और लोगों का ऐसा ही 20 लाख है सर। बड़ा बुरे दिन आ गए हैं हमारे, और लोग बोल नहीं सकते। हम कहने का मतलब यही है सर। और मैं तो यही बोलती हूँ, मोदी से, अमित शाह से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारा पैसा वापस दिलवा दे। और सर हम छोटा काम करते थे, गाय वगैरह पाल के, मतलब छोटा सा काम, सिलाई कढ़ाई करके, अचार वगैरह बना के बेच के हमने 1-1 रुपया इन्वेस्ट सर जमा किया। और आज ये दिन आ गए हैं कि लोग बहुत परेशान कर रहे हैं सर, बहुत ही परेशान कर रहे हैं सर। अपने गांव में ही उठने बैठने के लायक नहीं रहे हम, बहुत ही परेशान है। आपने कैसे पैसा ये आपने कैसे कमाया, मतलब काम क्या करते थे आप जो आपने इन्वेस्ट किया? सर पहले हम ऐसा ही करते थे, सिलाई कढ़ाई का काम करते थे। तो फिर उसके बाद हम ऐसे ही अचार बना के थोड़ा सा करते थे, थोड़ा बहुत बिजनेस करते थे ऐसा। तो चलो, और कहीं हमें ऐसा नहीं लगा। आदर्श सोसाइटी का देखा, बहुत अच्छे प्लान है, तो इस तरह से हमने पैसा जमा कराया। और लोगों को भी ऐसा, मतलब जो हमारे गांव की लेडीज़ हैं हमारे साथ काम करती थी, उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, इधर हमारा पैसा बचत हो रही है।